Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to discuss a very important chapter from Unit Algebra for ICSE Class 10 Mathematics, and this chapter is ratio and proportion. As you know, ratio is not in our syllabus, so only proportion carry maximum marks, 8 marks in your final examination, approximately 8 marks in final examination. So today I am going to discuss, although it is a very simple unit, but many basic concepts you need to learn. So start along with me. So first of all, what is proportion? Four non-zero quantities A, B, C and D are said to be in proportion if the A is to B is equal to C is to D. It means A by B should equal to C by D. Or we can also say that product of extremes is equal to product of means. And what are extremes? A into D is equal to product of means B into C. So extremes are A into D and means are B into C. Middle numbers जो है means है वो. A by B C by D के इक्वल होगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन. बट हम इससे भी ज्यादा जो चीज यूज करेंगे इट इज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. सो इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन व्हाट इज द डिफरेंस? A is to B is equal to B is to C. इसमें मीन प्रोपोर्शनल B है तो B square is mean proportional is equal to extreme product is A into C. So B is known as here mean proportional and these are the product of extremes. Here D is known as the fourth proportional, but here C is known as the third proportional. This is the difference between this continued proportion and normal proportion. Now I am trying to explain this thing with the help of an example. Find the mean proportional between 6.25, 6.25 and 0.16. तो मीन प्रोपोर्शनल मीन्स इसके बीच में कोई नंबर आएगा. It means let x mean proportional is x. So 6.25 is ratio x and x ratio this should be equal. अगर हम कह रहे हैं कि they are in proportion, continued proportion, तभी सिर्फ mean proportional word आएगा जब continued होंगे. तो continued means x square. ये क्या हो गया? बीच का product of mean is equal to extreme. It means 6.25 into 0.16. The product of this is 1. So x square is equal to 1 and x is equal to 1. So x is the mean proportional in between 6.25 and 0.16. Next question is find the mean proportional between 6 plus 3 under root 3 and 8 minus 4 under root 3. Method remains same. This is to x is equal to x is to this much. Equal होना चाहिए because they are in proportion. So it means x square, it means product of means या mean proportional is equal to product of extreme. It means 6, 3 under root 3 product with 8 minus 4 under root 3. So what is the product? 6 into 8, 8, 6, 48 minus 6, 4, 6, 4 the 24 under root 3. Now this is 8 into 3, 24 under root 3 and this is minus 12 under root 3. So 24 under root 3 plus minus they will get cancelled. Next is 48 minus 12 under root 3. अब इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें x स्क्वायर है. इट मीन्स हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है. तो स्क्वायर रूट लेने के लिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 3. तो 4 इंटू 3 12 और एक और अंडर रूट 3 आएगा. तो 12 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इट मीन्स 3 हो जाएगा. तो 12 इंटू अंडर रूट 3 मीन्स 3. So 48 minus 36. It means x square is equal to 12. So x square is equal to 12. तो x is equal to किसका स्क्वायर है? 4 हम कॉमन ले सकते हैं. इट मीन्स 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा. अगर आपको इसमें डाउट है तो आप 12 के फैक्टर्स बना सकते हैं. 2, 4, 2 एंड देन 3. तो इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 है. जब अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो जिसका पेयरिंग हो जाता है वो बाहर आ जाता है और 3 अंदर रह जाता है. तो 2 अंडर रूट 3 इसका आप एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हमने यहाँ पर x स्क्वायर से x की वैल्यू पर लेकर आए हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर 4 एंड 9 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का भी अभी हमने किया है. इसमें मेन ज्यादा प्रोपोर्शन ज्यादा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे. सो x स्क्वायर 4 and 9 these are in continued proportion. Find the value of x. अब अगर ये continued proportion में इट मीन्स हमें क्या पता है कि b स्क्वायर का आंसर ac के इक्वल होना चाहिए. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac. अब इनमें से b है कौन है? मिडल नंबर. इट मीन्स 4 स्क्वायर इज इक्वल टू a is x स्क्वायर and c is 9. So x, what is the value of x square? It is 4 square upon 9 means 3 square. So it means x is equal to
4 स्क्वायर मीन्स हम 4 ले आएंगे और इसका मतलब हमारे पास 3 आ गया, तो हमें पूरा खोलने की जरूरत ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर है, तो एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z। हमें दिया गया है y मीन प्रोपोर्शनल है x और z के बीच में, इट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या प्रूव करना है इसके अंदर, LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। LHS गिवन इन दिस क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू, हमें इसको प्रूव करना है y4 के इक्वल। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए, बट स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पर हम सिर्फ LHS को पहले एक बार में लेंगे प्रूव करने के लिए। नाउ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बट इन प्लेस ऑफ वाई स्क्वायर आई नीड टू पुट दिस वैल्यू एक्स जेड। सो माइनस वाई स्क्वायर मीन्स माइनस एक्स जेड and plus z square. In the denominator x minus 2, it means 1 upon x square minus 1 upon y square, but y square की वैल्यू अभी हमने देखा xz. Next is plus 1 upon z square. यहाँ तक कितना आ गया हमारे पास। अब हम इसको डिनोमिनेटर को पहले नीचे सॉल्व करेंगे, न्यूमिनेटर को एज इट इज अभी हम कॉपी कर देंगे। डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना है एक्स स्क्वायर एक्स जेड और जेड स्क्वायर का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इसके डिनोमिनेटर में, इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जेड स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स जेड है इट मीन्स एक्स जेड आ गया, प्लस जेड स्क्वायर है इट मीन्स प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा हमारे पास ये। अब ये प्लस है तो प्लस में हम एक्स स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, तो वन एंड सेम थिंग, ये पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आपके पास आंसर है, और एक्स जेड किसकी वैल्यू है हमारे पास, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड है और इसका स्क्वायर हो गया, इट मीन्स ये y4 आ गया और हमने y4 ही प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड पे हम पहुंच जाएंगे जो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। थर्ड प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है, इट मीन्स ये जो हमारा सेकेंड नंबर होगा, फर्स्ट नंबर 1 ही है, सेकेंड नंबर हमारा रिपीट होगा, इट मीन्स इसका रेशियो जो इसके साथ है, तो x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स का रेशियो इज जो इसके साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये मीन प्रोपोर्शनल होगा, सेम होना चाहिए जो सेकेंड नंबर का ही रेशियो थर्ड नंबर के साथ है। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शनल पता लगाना है, ये नहीं हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल को लेट हम उसको कर लेते हैं, जो भी इसमें नहीं कोई नंबर आया, कोई भी आप कांस्टेंट नंबर हमने लेट ए कर लिया, तो अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अप्लाई करेंगे, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट है और उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स बी स्क्वायर हो गया, दिस इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ए लेना है हमने, ए मीन्स हमारा यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल है और इसको ले लेते हैं हम इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो y अपॉन x हो गया। अब हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है, तो पहले हम जब यहाँ स्क्वायर करेंगे इट मीन्स हमारा अंडर रूट तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू a। अब इस तरह हमारे पास क्या बच जाएगा, इसका हम एक बार एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स वाई, वाई है, वाई ऑलरेडी है, एक्स ऊपर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स ऑलरेडी है, वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी प्लेस में रहेगा, एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट मीन्स हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर एक्स वाई है। तो एक्स वाई इज अवर थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये दिया है ए बी बी इज टू सी, तो ए बी बी इज टू सी, तो हमें सी फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल मीन्स। तो दोनों का हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यही फॉर्मूला इसमें कॉन्टिन्यूसली अप्लाई होगा। मैं सिमिलर क्वेश्चन इसलिए ले रही हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। नाउ कमिंग टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। सो प्रॉपर्टीज आर इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड देन डिविडेंडो। सो इन्वर्टेंडो के लिए हमने क्या करना है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ये हमें गिवन है कि यही चारों नंबर हैं जो नॉन जीरो नंबर्स हैं और ये प्रोपोर्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इफ वी अप्लाई इन्वर्टेंडो इट मींस वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू, तो ए इज टू बी का क्या हो जाएगा, बी इज टू ए इज टू, यहां से क्या हो जाएगा डी इज टू सी। इट मीन्स हम जो भी नंबर ले रहे हैं b बाय ए इज इक्वल टू डी बाय सी, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने अभी इसमें इन्वर्टेंडो अप्लाई किया। नाउ कमिंग टू ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा,
इनके ये चेंज हो जाएंगे, बीच वाले मीन चेंज हो जाएंगे, तो ए के साथ सी आ जाएगा एंड इस तरह हमारे पास बी के साथ डी आ जाएगा। इट मीन्स ए बाय सी का आंसर बी बाय डी के इक्वल इस केस में आना है आपके पास। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो में हम एडिशन करेंगे, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में मीन्स ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में प्लस करेंगे। इट मीन्स ए प्लस बी बाय बी, इट विल रिमेन इक्वल टू सी प्लस डी और नीचे डिनोमिनेटर में डी ही रहेगा। तो कॉम्पोनेंटो में हम सिर्फ एडिशन करते हैं। नेक्स्ट इज डिविडेंडो। डिविडेंडो में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यही न्यूमिनेटर रहेगा ए, लेकिन माइनस बी अपॉन बी और यहाँ पर सी माइनस डी अपॉन डी। नीचे डिनोमिनेटर को अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस में जो अप्लाई करेंगे सबसे ज्यादा बार हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे। इनको भी करेंगे। इन्वर्टेंडो में आपने रेसिप्रोकल लिया, आपके दोनों ये चीजें इंटरचेंज हो गई। ऑल्टरनेंडो में आपके पास सिर्फ मिडल नंबर इंटरचेंज हो गए, बी सी की प्लेस इंटरचेंज हो गई। आप देखिए यहाँ पर ए बाय बी था, यहाँ पर ए बाय सी हो गया, यहाँ बी बाय डी हो गया। ये हमें कहाँ अप्लाई करना है, जहां आपको दिखाई देगा कि क्वेश्चन में एक्स और वाई के भी हैं और यू और वी के भी हैं, लेकिन यू और वी की टर्म्स और एक्स और वाई के इंटरमिंगल हुए हैं, यानी कि उसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ मैच कर रहा है, तो आप उनको इंटरचेंज कर देंगे। तो दिस इज ऑल्टरनेंडो। कॉम्पोनेंट में प्लस करें, डिविडेंडो में माइनस करें, बट हम ज्यादातर जो अप्लाई करेंगे वो होगा कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो दोनों को मिक्स करके। इट मीन हम उसमें क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे। नीचे भी न्यूमिनेटर को ही पहले लिखना है। नेक्स्ट इज राइट हैंड साइड में अगर हम लेंगे तो c प्लस डी मीन्स वही न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे में c माइनस डी। तो सबसे ज्यादा बार हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंड को ही अप्लाई करेंगे और एग्जामिनेशन में भी यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये चैप्टर आपके नियर मोस्ट 8 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो कंपल्सरी सेक्शन में भी क्वेश्चन होगा, नॉन कंपल्सरी में भी क्वेश्चन होगा। इस बार के बोर्ड के पेपर में भी ये नियर अबाउट पूरे 8 मार्क्स का ही कैरी हुआ है, तो आपको इस चैप्टर पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अलजेब्रा टोटल जितने मार्क्स कैरी कर रहा है उसमें से हाईएस्ट प्रोपोर्शन इसी चैप्टर का है, प्रोपोर्शन चैप्टर का। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। So here you can see variables used are x and y and u and v. Here also u and v. So first we need to interchange these two. It means alternando we need to apply. So we just write here alternando and we are applying alternando. ऑल्टरनेटिव मीन्स हमें इसको इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, सो डेट एक्स वाला हमारा एक ही साइड में आ जाएगा। तो एलएचएस में हमारे पास टोटली एक्स और वाई वाला आ जाएगा और उस तरफ हमारे पास टोटली 5u प्लस 6v मीन्स u और v वाला वेरिएबल हमारे पास उस तरफ में चले जाएंगे राइट हैंड साइड में। अब जब भी आपको कभी ऊपर प्लस और नीचे माइनस की दिखेगा, इट मीन आपको यहाँ पर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाना है। पूरा क्वेश्चन सेम है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस के साथ है, तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। और हमेशा रिमेंबर दिस थिंग दैट कॉम्पोनेंट डिविडेंडो इज अप्लाइड साइमल्टेनियसली ऑन बोथ एलएचएस एज वेल एज आरएचएस। कभी भी एक साइड में नहीं लगेगा। अगर राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है तो 1/1 है तो भी हम उस पर कॉम्पोनेंटो लगा देंगे। यहाँ तो है ही है तो हमें अप्लाई करना ही है। तो अभी यहाँ पर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो अप्लाई करते मीन्स न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। माइनस डिनोमिनेटर, माय सजेशन इज जब भी आप माइनस करेंगे तो यहाँ आप एक बारी के लिए ब्रैकेट लगाएं। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रही हूँ, बट पहला नंबर माइनस का हो जाएगा और दूसरा प्लस का हो जाएगा, नहीं तो कई बार हम फिर गलती से ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो दोनों ही माइनस के नंबर्स हो जाएंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे 5u प्लस 6v इट मीन्स न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड इन द डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो आपका कुछ ना कुछ कैंसिल होना है, इसीलिए हमने ये चीज किया है। तो इसमें हमारा 6y कैंसिल हो रहा है, इट मीन्स दिस इज 10x और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5x कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स दिस इज 12y। राइट हैंड साइड में आपके पास सिमिलरली 6v कैंसिल हो रहा है, इट मीन्स 5 + 5 10u एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर 12v। सो 10/12 वो साइड में कॉमन है, वी आर टेकिंग 10/12 कॉमन, सो x/y इज इक्वल टू u/v। इफ दीज आर इन प्रोपोर्शन, हमें यही प्रूव करना था, x/y का रेशियो u/v के इक्वल है और ये हमारे पास आ गया। क्या लगाया हमने, पहले ऑल्टरनेटिव लगाया और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में जहां भी हमें प्लस माइनस न्यूमरेटर में डिफरेंस दिखाई दे जाएगा वहीं पर हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a is equal to 4√6 upon √2 plus √3, find a plus 2√2, a minus 2√2 plus a plus 2√3, a minus 2√3। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहली बार तो एक चीटिंग है यहाँ पे, इसका आंसर ही हमेशा 2 आएगा,
क्यों 2 आएगा? क्योंकि जहां पर ये 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 आ रहा है, 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, इसमें इट मींस इसके न्यूमरेटर से ये स्प्लिट होके बना है, तो वी नीड टू राइट इट एज a इज इक्वल टू, हम 4 अंडर रूट 2 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि इसके ये दो पार्ट्स हो जाएंगे, इट मींस 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 3, दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 इंटू 4 और ये अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 6 आ गया, तो दो पार्ट्स में हमने स्प्लिट करा, डिनोमिनेटर हमारे पास रिमेन सेम, कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमें इसको इस पार्ट में लाने के लिए हम इसको फाइंड, इसको 1 प्लस 2 कर देते हैं कि लेट इसका फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, तो फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों में से क्योंकि 2 अंडर रूट 2 है तो मैं 2 अंडर रूट 2 को नीचे ले जाऊंगी, यहाँ पर नीचे ले आऊंगी, तो a अपॉन 2 अंडर रूट 2 नीचे आ गया और 2 अंडर रूट 3 अपनी प्लेस में ही रह जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रह जाएगा। अब इस पॉइंट पे अगर हम इस पे कॉम्पोनेंट डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, नाउ सी व्हाट विल हैपन आफ्टर अप्लाइंग कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, व्हाट वी गेट, दिस इज सिमिलर टू दिस वन जो हमारा फर्स्ट पार्ट आया यहाँ पे, इज इक्वल टू, पर हमने अभी क्या पढ़ा था कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो जब भी अप्लाई किया जाएगा इक्वली दोनों साइड्स में होगा, तो हम राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे, तो ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सिमिलरली नीचे क्या करेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इट मींस अब ये तो हमारा यही आ गया पूरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट के आंसर को हमने यूज करना है फर्दर इसको प्रूफ करने के लिए, तो अब क्या आ रहा है हमारे पास 2 अंडर रूट 3 और प्लस 1 अंडर रूट 3, अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी अंडर रूट 3 करने में एडिशन या मल्टीप्लीकेशन में या सब्ट्रैक्शन में डाउट है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनको यूज करो कि जैसे ये फिक्स नंबर है, जैसे कि ये 2x है और ये x है, तो 2x और x का आंसर क्या होता है, 3x होता है, सिमिलरली आप ऐसे सोचेंगे 2 अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 के साथ कुछ नहीं, इट मींस 1 है, तो अंडर रूट 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया 2 प्लस 1, इट मींस 3 अंडर रूट 3, तो इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 और नेक्स्ट इज अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर में सेम 2 अंडर रूट 3, फिर यहाँ पर है 2 अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3, इट मींस इसमें से भी हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस x, इट मींस x और x नहीं है यहाँ पर, हमारे पास अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो इस सिमिलरली आपने यही चीज अप्लाई करनी है जहां भी आपको अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में इस तरह का डाउट दिखाई देता है। अब हमारे पास इससे यूज करके ये थर्ड इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले कंडीशन लेना चाहते हैं, इट मींस ये वाली पॉइंट लाना चाहते हैं, तो हमने इन दोनों में से अभी इसको नीचे कॉपी किया था, अब हम 2 अंडर रूट 3 को नीचे कॉपी करेंगे, इट मींस a अपॉन 2 अंडर रूट 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में 2 अंडर रूट 2 वही रहेगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 2 अंडर रूट 3। अब इस पे जब हम कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस 2 अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में a माइनस 2 अंडर रूट 3, यानी हमारे पास इस इक्वेशन का सेकंड पार्ट आ रहा है ये, लेकिन हमें राइट हैंड साइड पे भी कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाना है, तो इट मींस 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सिमिलरली न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आप अप्लाई कीजिए 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 करेंगे तो सिर्फ अंडर रूट 2 आ गया, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 हमारे पास फोर्थ इक्वेशन होगी। अब क्योंकि हमने 1 प्लस 2 का आंसर निकालना है तो 1 का आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, सिमिलरली फोर्थ का आंसर भी लिखेंगे, लेकिन फोर्थ के आंसर में यहाँ आपको दिख रहा है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 है, यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है, उनको सिमिलर बनाने के लिए हम क्यों, ऐसे तो यहाँ पर प्लस का साइन है बट हम माइनस का साइन ले लेंगे ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सिमिलर बन जाएगा, तो उसमें से मैं अंडर रूट 3 को पहले लिख के अंडर रूट 2 को बाद में लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने अंडर रूट 3 के साथ जो माइनस है उसको बीच में कॉमन लिख लिया और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब एलसीएम लिया गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, सिमिलर हम ऊपर का न्यूमरेटर कॉपी कर देंगे क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन आपने ध्यान रखना है, माइनस का साइन अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। नाउ 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, इट मींस 2 अंडर रूट 3, नाउ 2 एंड माइनस 3 अंडर रूट 2, इट मींस माइनस का 2, तो माइनस का 2 अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब आप इस पॉइंट पे सिर्फ अगर आप कॉमन भी लेंगे इस पॉइंट को, इट मींस यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है, दे विल गेट कैंसिल और आपका आंसर आएगा 2। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको न्यूमरेटर इस तरह से स्प्लिट हो रहा है कि वही चीज आपको 2 पार्ट्स में पूछी हुई है, उन सब क्वेश्चंस का आंसर 2 आएगा। 2 ट्रिक इसमें याद रखनी है, इस तरह से स्प्लिट करना है
कि पहला नंबर जब हम नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमें पहली टर्म मिल जाएगी, सेकेंड टाइम में हम उसको वही रहने देंगे, दूसरी टर्म को नीचे लेके जाएंगे और जब कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो हमारे को सेकेंड टर्म मिल जाएगी। दोनों का आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस होगा उनके माइनस के साइन में। वहां से माइनस का साइन आपने यहाँ प्लस के बजाय यहाँ माइनस ले लेना ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। हालांकि आपको एक स्टेप और दिखाना चाहिए था, बट आई एम ऑलरेडी, आपको पता है कि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं होती है, तो यहाँ हमने ये लिया तो दोनों कॉमन, दोनों का एलसीएम सेम आ गया। और सिमिलरली अपने ऊपर की टर्म्स को नॉर्मल जैसे हम एलसीएम लेते सॉल्व करेंगे, एज इट इज कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा 2। ऐसे हर क्वेश्चन में आंसर 2 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमें न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी है और प्लस और माइनस का डिफरेंस है। इट मींस हम फर्स्ट स्टेप से ही यहाँ पर अप्लाइंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कर सकते हैं। सो न्यूमरेटर पूरा कॉपी करेंगे प्लस डिनोमिनेटर, तो प्लस डिनोमिनेटर मींस हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, न्यूमरेटर को ही पहले कॉपी करेंगे, न्यूमरेटर एंड माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस एक्स प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स माइनस 1। और कभी भी जब हमने लगाना है तो राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करने हैं, तो 4x माइनस 1 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसका आंसर हो जाएगा 4x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 4x माइनस 3। अब कुछ ना कुछ कैंसिल होगा क्योंकि प्लस माइनस का साइन है, तो x माइनस 1 माइनस का, ये प्लस का है, दे विल गेट कैंसिल, तो वी विल गेट ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 इन द डिनोमिनेटर। सिमिलरली क्या कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 और अंडर रूट x माइनस 1, और इसके इक्वल क्या है 4x प्लस 1 4x माइनस 3। अब वी वांट टू कैंसिल दिस अंडर रूट, सो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग भी हमने कोई भी स्टेप लेना है, दोनों साइड में लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उस तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, अलजेब्रा यूज कीजिए। 4x प्लस 1 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4x स्क्वायर। चलो एक बार लिख लेते हैं, 4x 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 4x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 4 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 टू द 8x, डिनोमिनेटर में 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 3 12 इंटू 24x, और इस तरफ x प्लस 1 x माइनस 1 है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, दोबारा से कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन फिर और इजी हो जाए, क्योंकि हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है तो हमारे लिए वही सबसे सिंपल मेथड रहता है। तो इट मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फिर से न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, again in the denominator this is numerator प्लस माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस में अब साइन चेंज करने हैं, माइनस 9 और प्लस 24/x। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है ध्यान से देखिए, 1 1 कैंसिल हो रहा है, आपके पास इधर आ जाएगा 2x, नीचे में x कैंसिल हो जाएगा ओनली 2, राइट हैंड साइड में 16x स्क्वायर प्लस हो रहा है, इट मीन्स 32x स्क्वायर, 8x और माइनस 24x, इट मीन्स हमारे पास आ रहा है माइनस का 24 है तो माइनस का 16x, बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस 16x और प्लस 1 और 9 मीन्स हमारे पास आ गया 10। डिनोमिनेटर में 16 और 16 कैंसिल हो रहा है, 8x और 24 दोनों प्लस हो रहे हैं, इट मीन्स 32x आ रहा है डिनोमिनेटर में, और माइनस यहाँ 1 और माइनस 9, इट मीन्स माइनस 8। अब यहाँ भी 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, x आ रहा है तो बस हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 32x के साथ करेंगे तो 32x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 32x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 10। 32 दोनों साइड्स में तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 8 इधर है 16 को इधर लाएंगे, 16 माइनस 8 इज 8x इज इक्वल टू 10, इट मीन्स x का आंसर 10/8, कॉमन नंबर है तो क्या आ जाएगा 5/4, तो x का आंसर आ गया 5/4। इस केस में हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही था, और यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन ऐसे क्वेश्चन में एक मेन लाइन है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन का है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और सॉल्व फॉर x। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 है और नीचे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, तो अगेन हम यहाँ पर इसको स्क्वायर का स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप इज, क्योंकि जब भी वो बोलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में कॉम्पोनेंट डिविडेंड हो आती है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर,
और नीचे क्या करेंगे, न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो पहले न्यूमिरेटर को पूरा कॉपी कर लो और राइट हैंड साइड में भी सेम अप्लाई करेंगे। 17 + 8 17 - 8। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर में देखेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और इंटू 1। तो ये भी यहाँ पर किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब 17 + 8 का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 और यहाँ पर आ गया 9। अब ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इन द डिनोमिनेटर दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर एंड दिस इज 3 स्क्वायर। 25 और 9 है। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सबके स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3। अब फिर से प्लस माइनस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इट मीन्स हम अगेन अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। जब आप अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, फिर आपका ये माइनस प्लस का डिफरेंस आपको कुछ दे देगा। तो यहाँ पर आ गया न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर is equal to 5 + 3 5 - 3, 5 + 3 is 8, 5 - 3 is 2। इस तरह आपके पास 1 1 कैंसिल हो जाएगा। you will get 2x square in the denominator, x square you will get cancel and you will get 2, so 8/2, so x square is equal to 4, so x is equal to 2। तो x is equal to, हम क्योंकि 4 है तो हम इसमें प्लस माइनस 2 भी लगा सकते हैं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही करना है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और करने जा रहे हैं जिसमें हम क्यूब रूट की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो क्यूब रूट की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए आपको क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है। और इस बार ये फॉर्मूला मैंने अपने लाइव सेशन में कंप्लीट किया था और लाइव सेशन में ये फॉर्मूला मैंने अच्छे से बच्चों को समझाया भी था और इसी फॉर्मूला पे बेस्ड दोनों ही क्वेश्चन, प्रोपोर्शन के भी और एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आया था। इट मींस इस क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्यूब में है। तो x क्यूब प्लस 12x है डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर प्लस 8 है। राइट हैंड साइड में y क्यूब है, आपको क्यूब दिखाई दे रहा है। इट मींस यहाँ पर क्यूब का ही फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहीं से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। 9y स्क्वायर प्लस 27 है और फाइंड x इज टू y हमें फाइंड करना है। तो अब इसमें हम कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 12x, इट मींस न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर। सिमिलरली न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। राइट हैंड साइड में भी सेम ये चीज अप्लाई कीजिए, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड फिर से न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब क्या बन रहा है, इससे हम क्या बना सकते हैं, ये क्या है, a क्यूब 8 है, इट मींस 2 क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab a b स्क्वायर और a स्क्वायर b, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का। जब आपका पूरा फॉर्मूला प्लस है तो आप इसको देखिए और इसको देखिए। तो ये क्या है, 2 का क्यूब है और ये x का है, तो x प्लस 2 का होल क्यूब ये पूरा बन जाएगा। जब ये नंबर माइनस को, तो आपको पता है क्यूब के फॉर्मूले में हमारे पास 2 नंबर माइनस के आते हैं। तो नेक्स्ट इज x माइनस 2 का होल क्यूब आ जाएगा। उस तरफ आप देखिए 27 किसका है, 3 का, इट मीन्स 5 + 3 होल क्यूब। हमने लेना तो क्यूब रूट ही है तो क्यूब में ही लेंगे, अभी हम सबको फिर क्यूब रूट लेके कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में माइनस का 27 है तो -3 का क्यूब। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम इसका क्या ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूब रूट लेते हैं हमारे पास सारे क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया, x + 2 x - 2। इतना मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दिखाई दे जाएगा। अब हमारे पास बचा ही कुछ नहीं है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। इट मींस हमने दोबारा से यहाँ पर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो ही अप्लाई करना है। जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 है न्यूमिरेटर, अब क्या है x + 2 माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है खुद चेक करते जाइए। सॉरी x तो यहाँ पर रहेगा, 2 कैंसिल हो रहा है, 2x आ गया। नीचे में आपके पास x कैंसिल हो जाएगा और ये 4 आ रहा है। उस तरफ में हमारे पास y रह जाएगा, इट मीन्स 2y आ गया। और इस तरफ में हमारे पास y कैंसिल हो गया और 3 6 आ गया। अब इट मीन्स यहाँ पर से क्या वैल्यू बच रही है आपके पास, x/2 और इधर से y/3। हमें रेशो तो x और y का फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन्वर्टेंडो। लगाते ही ये चीज हमारी नीचे आ जाएगी, सॉरी ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो लगाए x/y इज इक्वल टू
2/3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी हमें सिर्फ ऑल्टरनेंडो, इस स्टेप के बाद हमें यहाँ पर एक बार ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि वी आर अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो अप्लाई करते ही एक्स बाय वाई का, क्योंकि हमें रेशियो तो नहीं का फाइंड करना था, दिस इज 2:3। तो आई थिंक ये चैप्टर बहुत ईजी है और आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू आर लेफ्ट विद एनी डाउट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन or you can message me on the given number in the description box, my WhatsApp number. You can ask questions on that also. So thank you for watching till then. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. ये नहीं सोचना कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करनी है, स्टार्टिंग से ही अच्छे से ही पढ़ाई करने से आपको लास्ट में ये सब चीजें बहुत अच्छे मार्क्स दिला पाएंगी। थैंक यू।